बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं कायम एहतशाम हूँ। हजवेरी टाउन में इस वक्त हम मौजूद हैं और हालत ये है कि महकमों ने इस स्टेज इस नहज पर लाकर लोगों को खड़ा कर दिया है कि वो बेचारे वैपर पकड़कर जो है वो अब अपने घरों से पानी निकाल रहे हैं। वो अपने घरों के अतराफ साफ़ सफाई कर रहे हैं ताकि वो चंद लम्हे जो है वो सुख का सांस ले सकें। अरसे दराज से यहाँ पर पानी खड़ा हुआ है और पानी की निकासी ना होने की वजह से हजवेरी टाउन के जो लोग हैं इनको परेशानियों का सामना है। 12 दफ़ा महकमों के पास भी गए, 12 दफ़ा मुंतखब नुमाइंदगान का भी दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन हर दफ़ा जो है वो इनको मायूसी का सामना करना पड़ा। ये चीज़ें अभी आप देखें, बच्चे हैं, बड़े हैं, वेपर उन्होंने पकड़े हुए हाथों में और यहाँ पर से जो है वो पानी की निकासी की कोशिश जो है वो की जा रही है। लोग होंगे हमारे साथ हजवेरी टाउन के, उनकी तरफ बढ़ेंगे, उनकी तकलीफ दुख दर्द उन्हीं की ज़बानी जानेंगे। लोग होंगे उनकी तरफ को आगे बढ़ाते हैं। हजवेरी टाउन के इस वक्त हालात हम आपके सामने बयान करते हैं, जहाँ पर महकमा बुलंदोबाग दावे करता है कि सीवरेज का एक बेहतर सिस्टम मौजूद है। वहाँ पर एक मामूली सी बारिश क्या आती है कि वो कच्चा चट्टा खोल कर सामने रख देती है और महकमों की कारकर्दगी पर सवाल निशान जो है वो खड़ा कर देती है। हमारे साथ हजवेरी टाउन के लोग मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं और इनके मसाइल जानने की कोशिश करते हैं। बताइएगा जी, ये पानी की निकासी ना होने की वजह से कितने ज़्यादा तकलीफ़ का सामना है आपको? ਇਹ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਆ। 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਜੰਮਪਲ ਇੱਥੇ ਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਐਮਪੀਏ ਐਮਐਨਏ ਨੂਨ ਲੀਗ ਹੋ ਜਾਏ, ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਪੀਟੀਆਈ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਆ ਪੂਰੀ ਮਾਜਰੀ ਝੁੱਗੀ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਜਿੰਨਾ ਨਾ ਓਵਰਫਲੋ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬੜੀ ਆਵਾਜ਼ਾਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤੰਗੀ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਤੱਕ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪਰਸੂਨੇ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। अच्छा, हादसात भी यहाँ पर रुनुमा होते होंगे? ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਆ ਨਾ 3 ਨੰਬਰ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੋਂ ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਪਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾਟ ਕੇ ਤੇ ਬੜੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਇੱਥੇ। ਐਸਐਚਓ ਐਸਪੀ ਤੱਕ ਵੀ ਆਏ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਮਕਾਨ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਆ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ। ਪਾਣੀ ਆ, ਵਿਚਾਰੇ ਦੇਖੋ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ, ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈੱਡ ਫਰਨੀਚਰ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ 4 ਦਿਨ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲੌਂਚ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਆਣਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਉਮਰੇ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਇਦਾਂ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਕਰਦੇ। पहले भी हालात ऐसे ही थे या पहले कुछ बेहतर हालात थे? ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਚੰਗੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਆ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਸੋਹਣੇ ਇਲਾਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਆ ਸਾਡੀ ਮਾਈ ਦੀ ਝੁੱਗੀ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਐਮਪੀਏ ਐਮਐਨਏ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾਓ। लोग कहते हैं कि भाई हमारे मसाइल जो थे वो जूं के तूं रह गए हैं। हमारे जो एमपीएस थे, एमएनएस थे, वो इस वक्त लंबी तान के सो चुके हैं और जो हमारे लिए तकलीफ़ का बायस है। अच्छा, लोग बीमार भी बहुत ज़्यादा होंगे? ਭਾਜੀ ਇਹ 3 ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਿਮਾਰ ਆ ਨਾ, ਤੇ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਦਵਾਈ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ। ਫੋੜੇ ਫਿੰਸਣੀਆਂ, ਬਿਮਾਰ, ਨਜ਼ਲਾ ਜ਼ੁਕਾਮ, ਇਹ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਭਰੇ ਪਏ ਆ ਸਿਰਫ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਆ ਕੰਟੇਨਰ ਰੱਖਿਆ ਵਾ, ਸਫਾਈ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਨਜ਼ਲਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੇ ਆ ਮੱਛਰ, ਆ ਮੱਖੀਆਂ ਗੰਦ ਤੇ ਬਹਿੰਦੀ, ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। यानी सफाई यहाँ पर प्रॉपर होती है, सफाई हो रही है, लेकिन पानी की निकासी नहीं हो पानी रही। की निकासी नहीं। अच्छा, पीने का जो साफ़ पानी है उसकी क्या सूरत है? ਪੀਣੇ ਦਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਤੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਧੋ ਸਕਦੇ। ਕਰੂਲੀ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਧੋ ਸਕਦੇ। ਗਟਰਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚੇ ਗੈਸ ਆਈ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪਿਛਲੀ ਆ ਕੁਰਬਾਨੀ ਗਈ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਟੂਟੀ ਚਲਾਈ ਆ, ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਖੂਨ ਹੀ ਆਇਆ ਟੂਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ये हालत सिचुएशन है। ਹਾਂਜੀ। अब ये चीज़ें बयान करते हुए लोगों को दुख तकलीफ़ होता है कि महकमों ने किस नहज पर उनको लाकर खड़ा कर दिया है कि लोग बेचारे अभी तक अपनी उन बेसिक नीड्स को, बुनियादी ज़रूरियात को तरस रहे हैं। वो यही कहते हैं कि भाई हम तो मसाइल में दिन ब दिन घिरते जा रहे हैं। जो महकमे थे वो इस वक्त लंबी तान के सो चुके हैं। किसी किस्म के जो हमारे मसाइल थे उनको हल नहीं किया जा रहा। अच्छा, ख़ास तौर पर मैं चूँकि यहाँ पर देख रहा हूँ बच्चों के चेहरों पर भी दाने निकले हुए हैं, स्किन पर भी दाने जो है वो निकले हुए हैं, तो ये फिर बहुत ज़्यादा ये केसेस होंगे बीमार? ਹਾਂਜੀ ਭਾਵੇਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਮਾਈ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਹਾਇਤ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗਲੀ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਗਲੀ ਤੱਕ ਜਲੂਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ।
ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰੀਫਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਮਾਈ ਦੀ ਝੁੱਗੀ 'ਚ 20-25 ਬਦਮਾਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜੇ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰੀਫ ਆ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸ਼ਰੀਫਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਆਣੇ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਆ ਮੌਲਾ ਅਬਾਸ ਦੇ ਆ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਦੇ, ਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਨਾਉਣੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਭੋਰਾ ਸਹੂਲਤ नहीं है। मुहर्रम के दिनों में बहुत परेशानी हुई होगी। मैं कहना ਪਿੱਛੇ ਸਖਾਵਤ ਨਾਲ ਦੇ ਮਜਲਿਸ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਆਲਮ ਅਸੀਂ ਸੱਦੇ ਸੀਗੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਹੋਏ ਇੰਨੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਆਲਮ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਮੌਲਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਿਆਨ करनी ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਪਾਣੀ ਗੰਦੇ पानी 'ਚ किथे ਉਹਨਾਂ ने आना सी। अच्छा, फिर ये बताएं कि ये कैसे मामला चला है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि हमने जो है वो उलमाए कराम को भी मदऊ किया हुआ था मजलिस में, जो ज़ाहिर सी बात है कि आ रहे होते हैं अज़ादार जो आ रहे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें फिर आप लोगों के लिए तो बहुत तंगी बनी होगी। ਭਾਵੇਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੀਵਰਿੰਗ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਛੋਟੇ ਪੈਪ ਆ, ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਇਹਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵੱਡੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪਵੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮਾਈ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨੇ ਏਰੀਏ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਆ। ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਾ ਉੱਚੀਆਂ ਵਾ, ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਖਲੋਂਦਾ ਵਾ। पैप का साइज है वा, पैप का साइज बड़ा होना चाहिए कि जो पानी का फ्लो है ना इधर जाना चाहिए। और इसमें सानू बहुत ज़्यादा तंगी होती है। लोग कहते हैं कि पानी की निकासी ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा तंगी का, बहुत ज़्यादा मसाइल का, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ता है। और ज़ाहिर सी बात है कि ये चीज़ें वैलिड भी हैं, दुरुस्त भी हैं, और ये चीज़ें फिर ज़ाहिर सी बात है यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए परेशानी का बायस है। एक और भी भाई हमारे साथ खड़े से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद सिद्दीक। सदीक साहब क्या काम करते हैं? ये हेयर ड्रेसर है हमारा इधर चौक में। तो पानी हेयर ड्रेसर है। कैसे सबसे पहले काम कारोबार चल रही है? ऐसे कारोबार जब बारिश होती है तो छुट्टी होती है, बारिश के दिनों में सही तरीके से नहीं बंद नहीं। आज भी दुकान बंद है, पानी पानी है, गोले गोले पानी चढ़ा हुआ है। नहीं तो फिर कैसे अपने मामलात ज़िंदगी कैसे चलाते हैं? आप कह रहे हैं कि शॉप पहले भी बंद थी पानी बारिश के दिनों में, अब दोबारा जो है वो बंद है। मामलात ज़िंदगी ज़ाहिर सी बात है, बच्चों ने कुछ खाना है, खाना ही होता है ना। छोटे बेटे हैं, कोई काम करते हैं, चलो ले आते हैं, करते हैं। ये जो इलाका है ना बहुत बड़ा है हजवेरी टाउन का, सारा निकास पानी का इसी जगह पे है। जितना भी बहुत बड़ा हल्का है, हमारी तरफ से 50 साल से इधर ही आता है पानी। 50 साल से जो पानी की निकासी है वो इधर ही आती है। इधर ही आता है। हम डूब जाते हैं, पिछले वाले जितने हैं सब ठीक है, आसानी से है। ये 2-3 गलियाँ हम ही डूबते हैं। जो कुआँ है ना पानी वाला, वो एक नहीं होना चाहिए, 2 होने चाहिए। फिर पानी का कोई चिप्पा, निगमानपुरा, इस्लामिया पार्क, महमूदाबाद, तारकाबाद भी यही पानी निकालता है। जब वो निकालता है फिर इधर बारी आती है पानी निकालने। लोग कहते हैं कि भाई जो हालत सिचुएशन है तो हमारे लिए अब चीज़ें मैनेज करना, आगे चलाना जो है वो बहुत मुश्किल होता जा रहा है, और ज़ाहिर सी बात है फिर सारी चीज़ें परेशानी का बायस हैं। अच्छा, कोई नुमाइंदगान ने भी कभी कोई चक्कर लगाया है, आके देखा है कि क्या हालात है? बस वोटों के दौरान आते हैं, उसके बाद नहीं आते। वोटों के दौरान आते हैं, वोट लेते हैं, कामयाब हो, मुड़ के इस तरह आते ही नहीं, पता ही नहीं करते ये कैसा रह रहे हैं दुनिया। यानी सिर्फ इलेक्शंस के दिनों में उन्होंने आके इलेक्शन के दिनों में आते हैं, उसके बाद नहीं आते। सिर्फ जो है वो उनका विज़िट इलेक्शन के दिनों तक ही होता है। वो इलेक्शन के दिनों में ही आके देख रहे होते हैं कि लोग जो है वो किस दर्द में, लोग किस कर्ब में, किस तकलीफ़ में जो है वो गुजर बसर कर रहे हैं। अच्छा, बच्चों में बीमारियों की क्या सूरत हाल है, इसको भी थोड़ा सा। बच्चे बीमार रहते हैं, अब दाने निकलते हैं बच्चों को कुछ। अब जो हवा चल रही है, ज़्यादा बीमारी खसरे की निकल रही है, दाने कले कले बच्चे देते गली महल देख रहे हैं, एलर्जी हो रही है। लोग इस वक्त गम गुस्से में मुब्तला हैं। वो कहते हैं कि हमारे मसाइल हल होने चाहिए, हमें अपनी बुनियादी ज़रूरियात मिलनी चाहिए। आगे भी बढ़ेंगे, लोगों से बात करेंगे। वक्त अभी मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त हजवेरी टाउन के जो हालात हैं वो हम आपके सामने बयान कर रहे हैं लोगों की ज़बानी, क्योंकि लोग अपना दुख, दर्द, तकलीफ़ को बेहतर अंदाज में बयान कर सकते हैं। लोग हमारे साथ खड़े हैं, इनकी तरफ बढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा लोगों को जो है वो मसाइल का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। एक तो अच्छी खासी जो है वो गर्मी है, गर्मी का मौसम है, वैसे जो है वो पानी का इस्तेमाल लोग ज़्यादा करते हैं। और फिर ज़ाहिर सी बात है जब निकासी का एक सिस्टम नहीं होगा, जब सीवरेज का एक सिस्टम नहीं होगा, तो लोगों के लिए ये पेचीदगियाँ दिन ब दिन बढ़ेंगे। लोगों के लिए दिन ब दिन ये मसाइल जो है वो बढ़ेंगे। क्या कहेंगे सर आप, जो चीज़ें हैं कितनी आपके लिए परेशानी का बायस है? भाई परेशानी इतनी है कि हमारी दुकानों की दीवारें जो फट चुकी हैं, और हमारे बच्चे जो इस बीमारी से 2 फौत हो चुके हैं।
और जब ये पानी खड़ा होता है बारिश के अलावा भी बैग पानी आता है इधर में, और जो खाले का पानी है नाले का वो इधर जमा हो जाता है। हमारी यहाँ गली में जाकर देखो, हम इतने इतने डूबे हुए हैं। हमारे मेहमान नहीं आ सकते, हमारा कोई बच्चा बाहर नहीं निकल सकता। हम इतने गंदगी में जाकर सौदा सल्फ लेते हैं, ईमान से खाना खाना भी मुश्किल हो चुका है। तो ईमान से हमारा तो रहना इधर दुश्वार हो चुका है। इधर ज़िंदगी गुजर चुकी है, 65 साल की उम्र है, लेकिन यही हाल देख रहा हूँ। तो कोई हमारा पूछने वाला नहीं है। जब इलेक्शन होता है तो हमारे महलों में आते हैं, पूछते हैं ये करेंगे वो करेंगे वो कर देंगे, फिर कोई भी नहीं पूछता हमें। और हमारा तो खुदा ही है, तो हम तो खुदा के आगे ही फरियाद कर सकते हैं। हमारा तो कोई पूछने वाला नहीं है। हमारा बहुत बुरा हालात है। वो रिक्शा चलाता हूँ मैं, 2 दफ़ा मेरा रिक्शा डूब चुका है, और मैं अभी 10,000 रुपये लगा कर आया हूँ। अभी 10,000 किसी से उठाकर अभी लगा कर आया हूँ। पिछले दिनों में बारिश हुई है, वो गाड़ी बिल्कुल ख़राब हो गया, वो मैंने बेच कर किसी से उधार लेकर 60-70 हज़ार रुपया गाड़ी चेंज किया। अब ये बंद पानी में ख़राब हो गया। अब मिस्त्री के पास गया हूँ, 10,000 रुपया लगा कर अभी आ रहा हूँ। हमारा तो गरीबों का कुछ हाल नहीं है। हम किधर किधर से पैसे पकड़े, किधर किधर से नहीं बन जाए। हमें तो ज़िंदगी की इधर उजारन बना रखी है। ये 3 गलियाँ 4 और ये चौंक है। इधर बहुत पानी खड़ा होता है, ऊपर से पानी दुकान मकानों का जो इधर है गलियों का वो इधर आ जाता है, जमा हो जाता है। ईमान से हमारे बाबरपुर से मेहमान आए हैं, वो वापस चले गए ये पानी देखकर। तो जो तकलीफ़ें आपने बयान की हैं, ये सुन के तो मैं ये सोचने पे मजबूर हो गया हूँ कि क्या आप फैसलाबाद में ही रहते हैं? फैसलाबाद में शहर में रहते हैं, इधर ही हमारा जमपल है। हमारा माँ बाप भी इधर ही फौत हुआ है, लेकिन हमारे पास कोई पूछने वाला नहीं है। हम तो सिर्फ रोकर गुजारा कर रहे हैं। अभी भी रोना आ रहा है ये हालत देख के, क्योंकि हमारे बच्चे जब गिरते हैं तो मिनट मिनट बाद कपड़े चेंज करने पड़ते हैं, बच्चे नहीं रुकते बाहर। हमारे मकानों के हाल देखो ना जाकर, दीवारें फट चुकी हैं, फर्श भी बैठ गए, अभी फर्श नहीं डलवाए हैं। वो गरीब आदमी किधर किधर से डलवाए, रिक्शा चलाए, मजदूरी कमाए, रोटी बच्चों की कमाए, पूरी करनी मुश्किल हो चुकी है। हमारा कोई परेशान हाल नहीं है। हम तो गरीब आदमी मरने के काबिल हैं। हमारा तो कोई पूछने वाला नहीं है इधर। वो कहते हैं कि भाई कोई हमारा पुरसा हाल नहीं बचा। जो हमारे मुंतखब नुमाइंदगान थे वो वोट लेकर गायब हो गए। उन्होंने दोबारा आकर ये देखना तक गवारा नहीं किया कि अवाम में क्या इस वक्त जो है वो बीत रही है, अवाम को किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, अवाम किन चैलेंजेस से गुजर रही है। किसी किस्म का जो है वो कोई यहाँ पर आकर इन लोगों के दुख दर्द को समझने की कोशिश नहीं की गई। एक और भी भाई हमारे साथ खड़े से भी बात करते हैं। क्या नाम है सर? महमूदुल हसन। क्या काम करते हैं आप? मैं मजदूरी करता हूँ अच्छा, मेहनत मजदूरी करते हैं। जी क्या हालात हैं ज़रा हमें बताइए। सुबह आप अगर काम पे जा रहे हैं तो क्या सिचुएशन है? सर साਡਾ ਤਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸੁੱਤੇ ਹਾਂ ਰਾਤੀ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਵਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸੌਣ ਲਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਰਾਤੀ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਕੁ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਆ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਆ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਗਲੀ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਪਿਛਲੀਆਂ 4 ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਇਸ ਗਲੀ ਥਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਹਿਰ ਵਾਂਗੂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੂਹ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਖੂਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਉਹ ਖੂਹ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇਲ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋ ਗਾਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ ਤਾਰਾਂ ਵੇਚ ਚੁੱਕੇ ਆ ਖੂਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਯਾਰ ਮੋਟਰ ਚਲਾ ਲਓ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਮੋਟਰ ਬੰਦ ਆ चिब्बा रोड सारा खाली हो गया सिर्फ साडा एरिया पानी ना भरया पे ये वजह क्या है? आप ये कह रहे हैं कि भाई आसपास के अतराफ़ के इलाकों में भी चीज़ें ठीक हैं, अतराफ़ में भी हालात बहुत बेहतर हैं, एक सिर्फ यही जो इलाका है ये हजवेरी टाउन का ये एरिया हो गया, ये सिर्फ क्यों मुतासर है? इसकी कोई वजह तो? सर वो कह रहे 20 लैन है 20 लैन का करके साड़ी नहीं सुन रहे हाले कि माई की झुग्गी तकरीबन पाकिस्तान बनने तो पहले की माई की झुग्गी है ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ 20 ਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਇਆ ਇੱਥੋਂ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਵਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਇਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ
ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਵਾ ਆ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਖੂਹ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ। ਖੂਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਰਾਤ ਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਆ ਤੇ ਪਾਣੀ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਣ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜੀਣਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਸੋਚੇ। ਚਲੋ ਜੈਸੇ ਵੀ ਆ ਸਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਆ, ਮਾਈ ਝੁੱਗੀ ਗਰੀਬ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ 20 ਲੈਣ ਆ, 20 ਲੈਣ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਤਾਂ ਸੁਣੇ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਸੁਣਾਓ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ सतह ਤੇ। फरियाद करते हैं लोग कि खुदारा हमारा कोई मसला आकर सुने, कोई ये आकर देखे कि हम किस तरह जो है वो ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, कोई आकर ये देखे कि हमें किन तकलीफ़ का, किन मसाइल का, किन मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। लोगों बेचारों ने कोई रिक्शा चलाता है, कोई मेहनत मजदूरी करता है, वो सारी ज़िंदगी उन्होंने इन्वेस्ट करके घर बनाए हैं और अब सिचुएशन ये है कि वही घरों का वही गंदा पानी उनकी अलाइनमेंट्स में दाखिल हो रहा है, उनके घरों के बुनियादों को तोड़ रहा है, बुनियादें ख़राब हो रही हैं, घर गिरने के करीब हैं। अब महकमे जिनकी ये ज़िम्मेदारी था कि उन्होंने कुछ करना था, वो माशाल्लाह से लंबी तान के सोते जो है वो नज़र आते हैं। सर इस पर रिक्वेस्ट अपील क्या करेंगे हालात की बेहतरी के लिए ताकि चीज़ें बेहतर हों? बस अपील हमारी तो यही है गरीबों की कि हमारी तरफ तवज्जो दी जाए और हमारे गरीबों का कुछ सुना जाए, कुछ ख्याल किया जाए। हमारे बच्चों का, हमारी औरतों का घर में रहना मुश्किल हो गया है, अंदरों में पानी पड़ा हुआ है, निकाल कर कल के बस हो गई है बच्चों की। तो हमारी खुदारा मरियम से, पंजाब हुकूमत से अपील है हाथ जोड़कर, खुदा वास्ते हमारे पर रहम किया जाए। हम बहुत गरीब आदमी हैं, हम दोबारा मकान छतें नहीं बना सकते, हम तो सिर्फ रो सकते हैं बस। इनकी आंखें जो है वो नम हो गई हैं और वो ये कहते हैं कि भाई हमारी अब सख्त इस्तात उतनी नहीं है कि हम मकान बना सकें, हम दोबारा घर तामीर कर सकें, हम दोबारा घर खड़े कर सकें। मैं चाह रहा हूँ कि ये लोग बोलें, ये लोग अपना दुख दर्द सुनाएं, ये लोग अपना उस तकलीफ़ को बयान करें जिसका सामना इन्हें 24 घंटे करना पड़ता है। कोई एक लम्हे के लिए इनके पास कोई रिलीफ नहीं है। ऐसे ही है कोई एक लम्हा ऐसा हो कि कोई सूखा सा। बारिश से अलावा भी जब ये नाला टूटता है, ये पानी ओवर होता है तो ये इलाका डूब जाता है, इतना गंदगी होता है, इतना बदबू आता है। ईमान से हमारा जी करता है कि मकान छोड़ के कहीं कुली डाल ले जाके। और ये जो 4-5 गलियाँ हैं, बाज़ार हैं, ये महल्ले हैं, इनका तो खुदा की कसम ऐसा बुरा हाल है कि ये लोग तो अल्लाह के आसरे पर ही बैठे हैं। यही कहते हैं कि कोई तो हमारा आएगा परेशान हाल, कोई तो हमारा हामी आएगा, कोई तो खुदा के आदमी अच्छा आएगा जो हमारा सोचेगा। लेकिन खुदारा हमारी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है अरबाब इख्तियार से, मरियम बीबी से, कमिश्नर साहब से, डीसीओ साहब से कि हमारे इलाके की तवज्जो दी जाए। और ये जो खूह वाले हैं, ये फ़िरौन बने हुए हैं, इनसे पूछा जाए ये हमारा क्यों नहीं सोचते, ये हमारी नहीं सुनते। इन लोगों का जो है वो आखिर क्यों नहीं सोचा जा रहा? ये लोग अपना जो रोना धोना है, अपने जो आंसू हैं, अपना जो एक गम है, उसको बयान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई हमारी आवाज़ कौन बनेगा, कौन आकर हमारे मसाइल हल करेगा। महकमे हैं तो वो टाल मटोल से काम ले रहे हैं, मुंतखब नुमाइंदे हैं तो वो सिर्फ इलेक्शन के दिनों में आते हैं, वोट लिया और इनको दिलासे दिए और फिर जो है वो गायब हो गए। ये सारी चीज़ें फिर इन लोगों के लिए जो है वो तकलीफ़ का बायस है। और भी दोस्त हमारे साथ आए, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद जमील जी। अच्छा जमील साहब, क्या काम करते हैं? जी मेरी दुकान है यहाँ पे करियाने किस चीज़ की है? करियाने की। कैसे चल रहा है करियाने का काम? कारोबार बंद हुआ है जी, ये 2 दिन से 1 घंटा बारिश हुई और 2 दिन से ये पानी गलियों में खड़ा है। 1 घंटा बारिश हुई और 2 दिन से आप हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। और ये मस्जिद, मेन मस्जिद है जो जामिया मस्जिद है, वहीं से गली जाती है। ये सब नमाजी भी डिस्टर्ब हैं और ये 2 दिन से आप देख लें खुद ही, जैसे जितनी इलाका है ये सब डूबा हुआ है। अच्छा एक चीज़ मुझे ज़रा बताइएगा कि मोस्टली लोग ये कहते हैं कि करियाने का जो बिज़नेस है इसमें बड़ा प्रॉफिट है, क्या कोई ये हकीकत बात है? नहीं जी, ये बस खाम ख्याली है सबकी। ये जो इस वक्त जो करियाना छोड़ने पर मजबूर हुए हैं सब, क्योंकि जो भी चीज़ है वो मार्केट से इस रेट में मिल रही है कि जो गाहक जो है वो कह रहा है कि उस रेट से हमें वहाँ से मिल रही है। कोई मार्जिन नहीं रहा इसमें जब बदनामी रह गई है। बस छोटा दुकानदार जो है ना वो सिर्फ बदनाम हो रहा है और जो
बड़े दुकानदार हैं वो आज अपनी मर्ज़ी का रेट लगा रहे हैं। जब छोटे दुकानदार चीज़ बेचते हैं तो वो सिर्फ लोगों की बातें सुनते हैं कि तुम महंगा कर रहे हो, लेकिन उनको नहीं पता होता ये खुद पैसे महंगे देकर आए हुए हैं। वो अपनी थोड़े से मार्जिन के लिए भी बदनाम हो रहे हैं। और जो बड़े जो हैं वो डीलर वगैरह, वो कुछ भी नहीं, उनका वो एसी लगे हुए हैं, वो काम कर रहे हैं, गाड़ियाँ तरफ से आप ये कह रहे हैं कि भाई करियाने का वैसा काम कारोबार पीछे से नहीं है, कोई मार्जिन नहीं मिल रहा। दूसरा यहाँ पर जो काम कारोबार लोग कर रहे हैं करियाने का, उनकी सिचुएशन ये है कि वो शॉप्स नहीं ओपन कर पा रहे हैं 2 दिनों से। तो ये चीज़ें तो फिर बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस होगी। ये तो बहुत परेशानी है, लोगों का बुरा हाल हो गया है ये। और गंदगी इतनी है, बच्चे बीमार हो रहे हैं। ये तीसरा दिन ये कल से है, ये कल से डूबा हुआ है हमारा इलाका। ये हमारे इर्द गिर्द जितना भी इलाका है, गुलिस्तान कॉलोनी, ये वो ऊंचे इलाके हैं, ये सब खुश्क हैं, कहीं कुछ पानी नहीं है। थोड़ा सा सारा इलाके का पानी इधर हमारे हजवेरी टाउन में जमा हो जाता है। ये हमारा ये हुकूमत से मुतालबा है कि ये जो हमारा ये रोड है, इस खाले के बिल्कुल साथ थोड़ी सी खाली जगह है। हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि वहाँ हमारे लिए एक अलहदा डिस्पोजल बनाया जाए, क्योंकि हमारी पानी की निकासी है ये बेहतर अंदाज से हो सके। इस वक्त जो है वो हजवेरी टाउन में इस वक्त हम मौजूद हैं। इलाके के हालात आपके सामने बयान करें। वक्त अभी मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जिन मसाइल और परेशानियों में लोग इस वक्त मुब्तला हैं, वो उनकी ज़बानी में आपके सामने बयान कर रहे हैं। हजवेरी टाउन का ये इलाका है, पानी की नज़र हो रहा है। महकमे इस वक्त खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं। और मुंतखब नुमाइंदगान जिन्होंने वोट इस बिहाफ पे लिए थे कि हम इन गरीब आवाम के पुरसाने हाल बनेंगे, वो आवाम को ही भूल चुके हैं। और ये चीज़ें फिर सवाल निशान ज़रूर खड़ा करती हैं। भाई हमारे साथ खड़े से बात करते हैं। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मून। कितने साल से इस एरिया में रह रहे हैं आप? तकरीबन हो गए 25 साल। क्या हालात आपने इस इलाके के देखे, कोई बेहतरी देखी? सर यही हालात देखे हैं जब से हमने होश संभाली है, बचपने से लेके आज तक। हजवेली टाउन के यही हालात हैं, ये बेहतर नहीं हुए, ना किसी ने किए। ये ऐसे के ऐसे ही हैं। जो भी सपोर्टर वोटर आया है उसने नारे लगवाए हैं हमसे, हमें गली गली घुमाया है, हम साथ पूरा सपोर्ट किया हम लोगों ने। लेकिन जब हम गए हैं उनको बोला यार हमारे मोहल्ले के, हमारे घरों के ये हालात है, किसी ने कोई बात नहीं सुनी। ये खूह वालों के पास जाते हैं, ये बात नहीं सुनते, कोई भी किसी की यहाँ बात नहीं सुनता। खुद अपनी मदद और अल्लाह के आसरे पे सब चल रहे हैं। यहाँ के ये हालात देख लो, हमारे घर में बीवी बच्चे बहन भाई सब घरों के परेशान हैं, आवाज़ार हैं। किसी ने अभी तक नाश्ता नहीं किया, पहले घरों से पानी निकाल रहे हैं, ठीक है, फिर बाहर में कुछ खाने का सोचना है। छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, माएँ परेशान हैं, बहनें परेशान हैं। कोई बेहतरी नहीं आ रही इस इलाके में, ना कोई बड़ा कोई आदमी कर रहा है, ना कोई MLA MPA, किसी का कोई बेहतर हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं हमें नज़र आ रहा। क्या आप कहना चाहते हैं कि महकमे हों, MP MLA हो, सब नाकाम है? ठीक है ना, हमने रिक्वेस्टें की हैं, मिन्नतें की हैं कि यार ये इलाका हमारा थोड़ा सा बेहतर हो जाए। इतना पानी हमारे घरों में, सब गरीब आदमी हैं, दीवारें छतें कमज़ोर हैं, मज़दूर आदमी हैं। 1000-1200 दिहाड़ी इस दौर में कमाने वाला क्या करेगा? वो घर बनाएगा या कुछ खाएगा या मकान देखेगा या बच्चे संभालेगा? इसमें क्या पॉसिबल भी है कि आप प्राइवेटली कोई बंदे अरेंज करवा के जो है वो उनसे निकासी का सिस्टम करवा सकें? इतना भी बजट है आप लोग? नहीं, हमारे पास तो इतना भी नहीं है कि हमारे घर का गटर बंद हो जाए, वो 300 मुश्किल होता है हमारे पास। मजदूर है यार, बता नहीं रहे हम आपको, गरीब आदमी हैं। घर का गटर बंद हो जाए ना, वो हम खुद ही निकालने की कोशिश करते हैं पहले। जब नहीं निकलता तो फिर किसी की मिन्नत करते हैं, वो 500 मांगता है, फिर 300 दे के करवाते हैं। वो भी हम अपने घर से मुश्किल निकालते हैं, तो क्या हम किसी से प्राइवेट करवाएंगे? इतने वसाइल होते तो हम प्राइवेट ज़रूरी यहाँ पे धक्के खाने हैं, कोई और जगह पे ना चले जाएं, कोई और जगह छोटी थोड़ी मोटी लेके वहाँ पे गुजारा कर लें। नहीं वसाइल है तो इस जगह में रह रहे हैं, इसी जगह में हालात गुजारा कर रहे हैं। तो हमारी अपील है, रिक्वेस्ट है सबसे, हमारी मिन्नत है कि इसके लिए बेहतर सोचा जाए। सब घरों वाले परेशान हैं, मोहल्ले वाले। आज इतना बड़ा मिशन है इस गली में, इस बाज़ार में, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस अज़ार रखी हुई है, सफ़े जा बिछने वाली है, लेकिन कोई इंतज़ाम नहीं है। पलीती है, लेकिन वो साफ़ इतनी अच्छी है और बेहतरी है, उसके लिए सफाई सतराई पकीज़गी बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो नहीं है। लोग ये कहते हैं कि भाई हमने यहाँ पर जो मजालिस का एहतमाम किया मुहर्रम के अयाम में, वो भी बड़ी मुश्किल से किया।
अब उसके बाद भी अगर मजालिस होती हैं तो हमारे लिए ये करना बहुत मुश्किल है। महकमों को भी हमने बार बार ये जाकर चीज़ें बताएं कि भाई ये हालात हमारे साथ हो रहे हैं, कोई खुदारा हमारी बेहतरी की तरफ सोचा जाए। किसी ने जो है वो इनकी बेहतरी की तरफ नहीं सोचा। अच्छा, अपील रिक्वेस्ट क्या करेंगे ताकि चीज़ें बेहतर हों हालात? सर अपील यही है कि जो बेहतर है वो किया जाए, ठीक है ना, सुकून होना चाहिए इधर। ये पानी की निकासी है जो जिधर भी है, कोई इधर को हमारे जगह है, कोई वहाँ पे जो भी खूह वगैरह का सिस्टम है, हमें तो नहीं इन चीज़ों का, लेकिन वो होना तो चाहिए ना, होना चाहिए ताकि मसाइल का हल जो है वो हो सके। एक और भी नौजवान हमारे साथ आए, से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अबू बकर। अबू बकर, क्या काम करते हो? मैं ऑनलाइन काम करता हूँ। ऑनलाइन काम करते हो। वैसे ऑनलाइन क्या इस वक्त सिचुएशन चल रही है? अच्छा चल रहा है आप लोगों का ऑनलाइन काम? अच्छा चल रहा है काम, मेडिसिन का काम है ऑनलाइन, तो अच्छा चल रहा है माशाल्लाह। बताइए ज़रा क्या इस वक्त हालत हैं कि ये इलाका पानी में डूब रहा है, लोग भाई यारो मददगार हैं, लोग कहते हैं कि भाई हम तो इस वक्त तबाही के दयाने पे पहुंच गए हैं, कोई हमारा भी पुरसाने हाल बने। जी। ये जो सीवरेज लाइन है ना, ये 50 साल पुरानी डली हुई है, तो उसकी वजह से सीवरेज का कोई निज़ाम नहीं है। जब भी बारिशें होती हैं पानी ऐसे ही रुकता है, जो मर्जी हो जाए, क्योंकि सीवरेज लाइन बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई, खस्ता हाल है। अंदर से सीवरेज लाइन सारी ख़राब हो चुकी हैं, जिसकी वजह से पानी ना इलाकों में बढ़ जाता है, क्योंकि पानी की निकासी आपका कोई इंतज़ाम नहीं है, तो जिसकी वजह से इलाके बढ़ जाते हैं और 2-2 दिन तक पानी खड़ा रहता है। जैसे मरियम नवाज ये सुथरा पंजाब पे काम कर रही हैं, तो उन्हें चाहिए कि सीवरेज के निज़ाम को, मतलब लाइनों को भी बिछाना चाहिए, नई लाइनें चाहिए ताकि मामला बेहतरी की तरफ। मैं अगर लोगों के दिलों में इस वक्त जो है वो ग़म गुस्सा भी है, महकमों के बारे में, मुंतखब नुमाइंदगान के बारे में नफ़रत भी पाई जा रही है, और वो कहते हैं कि हमें इन मसाइल में डुबोने का में वो बराबर के जो है वो शरीक हैं। आगे भी बढ़ेंगे, लोग हमारे साथ होंगे, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन वक्त मुख्तसर से ब्रेक हुआ, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हजवेरी टाउन के रहने वाले, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। उनके जो दुख तकलीफ़ हैं, जिन अजियत में वो घिरे हैं, वो उन्हीं की ज़बानी हम जान रहे हैं। जी क्या कह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं क्या बारिश ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਆ, ਜਿਹੜੇ MPA MLA ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਹਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਾਏ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ 2000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਜਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ, ਕੋਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਤੇ बस साਡੀ। ये तो आपका हक है ना, आपका तो ये तो राइट है, ये तो उनको फराहम करना उनकी ज़िम्मेदारी है। आपने उनको ये चीज़ें बावर नहीं कराएं कि भाई आप लोगों ने इन चीज़ों को करना है, आपकी ज़िम्मेदारी है, ये करें। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਭਾਈ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦੱਸੇ ਹੋਣਾ ਜਾ ਕੇ। है कि बड़े अफसरान तक बड़े अफसरान तक जो है वो इन लोगों की एक्सेस भी ख़त्म हो रही है। जो बाहर का अमला है वो वहाँ तक उनको एक्सेस भी नहीं दे रहा कि क्यों जो है वो अब जाएं, अपने मसले मसाइल, अपनी शिकायत जो है वो उनके सामने रखें। अच्छा, ये ख़ास तौर पर मैं जानूँगा, बीमारियों की शरह भी बहुत ज़्यादा होगी, बीमारी भी बहुत ज़्यादा फैल रही है। बीमारी या गंदा पानी, बीमारी फैलनी है ਇੱਥੇ ਨਾਲੀਆਂ पे आप मेरे घर तो सारे छाट आई हुई है, सारे घर से मैं काम तो छुट्टी करके हूँ घर चला, छाट दूर करनी है, किराए तो मकान है, मालक मकान कुसकड़ नहीं दिया ना, MP है मैंने कुसक दे आ पैसे कोलों लाने जेब चो, आ 500 रुपया फड़ के लिया को कम वाले को 500 फड़ के लिया, जो रोटी खानी थी वो छाट वाले दे देने। MPA MNA साढ़े को उदों आते हैं जो इन्हों मतलब हो, मतलब तो बाहर कोई इतने भी नहीं, इतने कोई भी नहीं। लोग ये कहते हैं कि हमारे मसाइल सुनने को जो है वो कोई नहीं आता। हम दिहाड़ीदार तबका हैं, हम मजदूर तबका हैं, हम रोज़ाना की बुनियाद पर कमाने वाला तबका है, कोई जो है वो हमारे लिए इन मसाइल से हमें निकालने के लिए जो है वो कोशिशें नहीं कर रहा। अच्छा, सानू ऐसा अस्पताल सी, उन्हें भी 4 दीवारी अंदरों कर ली, उन्हें भी प्लस्तर कर लिया, उन्हें अपना फायदा देख लिया, वोटा ऐसी दी जिताया असी आ, उन्हें ये देखा कि मल्ला सारा डुबन दिया वा, सारी उन्हें 4 दीवारी कर ली, किन्ने पैसे लाए उन्हें ये नहीं किया कि इतने पैसे ला मैं सीवरेज लाइन सही करा लवां, उन्हें अपना हस्पताल महफूज किया। बाकी जो हालत सिचुएशन है या जो लोग बता रहे हैं, ये तकलीफ़ का बायस है लोगों के लिए, और वो कहते हैं कि भाई खुदारा हमें इन मसाइल से निकाला जाए, जिन मसाइल में हम डूब रहे हैं इन मसाइल से हमें निकाला जाए ताकि बेहतरी आ सके। और बेहतरी तभी मुमकिन होगी जब लोग आकर ग्राउंड पर आकर देखेंगे। जी,
मियाँ साहब को चाहिए, आखिरी वक्त चल रहा है। ये देखे मोहल्ले का पूरा एरिया चेक करे, सारी तरफ चारों दीवारें की हुई हैं, ठीक है। ये चीज़ें बेहतर करना महकमों की जिम्मेदारी है ना, वो तो बजट ले रहे हैं। भाईजान उधर भी कैमरा मारे हैं ना, दिखाएं ना, काफ़ी दीवारें, काफ़ी सब कुछ हो रहा है, लिहाजा आप रिक्वेस्ट करें उनके रिक्वेस्ट करें। अच्छा, ख़ास तौर पर मुझे अब एक चीज़ आप बताएं कि जो आसपास के तालीमी इदारे हैं वहाँ पर जब बच्चे जा रहे होते हैं या हमारी बेटियाँ जा रही होती हैं, क्या सिचुएशन होती है? महफूज तरीके से इन रास्तों से गुजर पाते? मुश्किलात बहुत ज़्यादा उठानी पड़ती है। पता क्या, पहले तो छुट्टियाँ होती हैं ना, जाया ही नहीं जाता, तो मुश्किलात बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए तो मियाँ साहब से भी रिक्वेस्ट है और मरियम नवाज़ साहब से भी खुसूसी रिक्वेस्ट है। माशाल्लाह काफ़ी रिस्पांस दे रही हैं आवाम को, काफ़ी 12,000 भी सुनने में आ रहा है, पता नहीं कहाँ दे रही हैं, ये तो पता ही नहीं है, ठीक है। काफ़ी सुनने में आ रहा है, काफ़ी रिस्पांस दे रही हैं। ये अच्छे इक़दाम कर रही हैं, अच्छे इक़दाम कर रही हैं, लेकिन मज़ीद उनको बेहतर बनाने के आप समझते हैं कि बिल्कुल कम से कम इतना सा क्लिप भी दिखाना चाहिए ना मरियम नवाज़ को कि वो ऊपर वाले लोग जो खाई जा रहे हैं, सब कुछ खाई जा रहे हैं, वो दे रही हैं, ये खाई जा रहे हैं। ये कम से कम ये दिखाएं ना क्या हालात बने हैं, फिर उन तक वीडियो पहुंचेगी तो वो भी ज़ेर सानी करेंगे। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि ऊपर से बजट आ रही हैं, लेकिन वो महकमे जो हैं वो खुद उन बजट को इस्तेमाल कर रहे हैं, खुर्द-बुर्द कर रहे हैं, आम आवाम पर, आप लोगों पर, हम लोगों पर वो चीज़ नहीं लग रही भाईजान, नहीं लग रही। ये अलग सिचुएशन है, ये इलाका है, इसके सिचुएशन जो है वो इंतहाई तकलीफ़ का बायस है। हजवेरी टाउन में ये वाक़ई इलाका है और लोग बेचारे परेशान हैं। वो कहते हैं कि भाई हमें जिस तंगी, जिस परेशानी, जिस तकलीफ़ का सामना है, हमारे लिए दर्दनाक है। महकमे खामोश तमाशाई का किरदार अदा करें। उम्मीद है इस पर जो है वो तवज्जो दी जाएगी, हालात को बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। अभी ये चीज़ अगर आप देखें कि यहाँ पर अब लोग बेचारे हाथों में वेपर पकड़ कर खड़े हुए हैं, वो पानी की निकासी कर रहे हैं, पानी को निकाल रहे हैं ताकि जो है वो पानी की निकासी हो सके। अब सिचुएशन, हालत जो है वो यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए इंतहाई जो है वो तकलीफ़ का बायस है और वो कहते हैं कि खुदारा हमारी बेहतरी के लिए कुछ सोचा जाए। अब ये मज़दूर तबका, बेचारा गरीब तबका अपनी दिहाड़ी से हटकर जो है वो यहाँ पर काम करने पर मजबूर है। उम्मीद यही की जाती है कि मुतल्लिका महकमे इस चीज़ पर ज़रूर तवज्जो देंगे, मसाइल को हल करने की तरफ जो है वो ज़रूर जाएंगे। आज के प्रोग्राम के साथ कायम हमारी पूरी टीम को अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने के बाद।